اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بزرگی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاذکرونی اذکرکم، یعنی اے بندو تم مجھ کو یاد کرو، میں اپنی مہربانی سے تم کو یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو یاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ افضل اور اکمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہوگا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرے یعنی لڑے، کیا اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا اس سے بھی افضل اور اکمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اس قدر تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جاوے اور وہ شخص زخموں کی وجہ سے خون میں بھی رنگا جاوے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس سے افضل اور اکمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور اکمل ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کے لیے مقرر ہوا، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے غافل اور بے پرواہ ہے اور محروم ہیں کہ جس میں نہ گنتی کی قید، نہ تسبیح کی، نہ بلند آواز سے پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ کاروبار چھوڑنے کی قید۔ ہر طرح اختیار ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام پاک پڑھتے رہے تو مشکل بات نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ اللہ ہی اللہ بول، تیرا کیا لگے گا مول؟ آیا اللہ ہی اللہ ہے، نیہاں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ شیریں نام ہے اللہ کا، جب اس کو لیتے ہیں چپک جاتی ہے تالو سے زباں، اللہ ہی اللہ ہے۔ گزرتی ہے شہادت پنچ گانا اس کی مسجد سے، نہ آئے گر یقین سن لو اذاں، اللہ ہی اللہ ہے۔ کرو اللہ ہی اللہ، دم بے دم اللہ خوش ہوگا، وہاں رحمت برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے افضل ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا مر کر معلوم ہوگا، یہاں دنیا میں بھی وہ حلاوت اور لذت اس نام پاک میں ہے کہ ساری زمین کی بادشاہت بھی اس مقابلے میں گرد ہے، اور اگر خدا کی یاد نہ ہو تو خدا کی قسم اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو ہرگز ہرگز کامیابی نہ ہوگی، یعنی یہاں دنیا میں بھی راحت و چین نہ ہوگی اور مرنے کے بعد بھی راحت و آرام نہ ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی برکت سے انسان کو بڑے بڑے درجے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا اور ولی ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت شاہ معین الدین اجمیری رضی اللہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس رات کو اس وقت کے ولیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دوست معین الدین دنیا سے آنے والے ہیں، آؤ ان کی پیشوائی اور تعظیم کے لیے چلیں۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ نور سے لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھے، موت پائی اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں۔ اور جب حضرت شاہ فریع الدین سکر گنج رضی اللہ نے وفات پائی تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے دوست فرید نے وفات پائی اور اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی، اور اللہ تعالیٰ بھی بڑی قدر کرتے ہیں اپنے یاد کرنے والوں کی۔ سید الذاکرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا مرتا ہے تو جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔
अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके मरने पर क्यों रोते हो। वह कहते हैं कि हे हमारे रब, यह शख्स हमको इसलिए प्यारा था कि जिस तरफ निकलता था आपका जिक्र करता था। सुभान अल्लाह, क्या शान व इज़्ज़त है। अल्लाह ताला के ज़ाकिरीन बंदों की उनका जीना मरना, चलना फिरना और सोना जागना सब रहमतों से भरा हुआ है। मुसलमान भाइयों और बहनों, खूब याद रखो, मरने के बाद कब्र में और आखिरत के मुल्कों में जाना पड़ेगा और वहाँ अल्लाह व रसूल की ताबेदारी का सिक्का चलेगा। उस वक़्त कदर मालूम होगी, फिर अल्लाह ताला की याद और ताबेदारी कितनी बड़ी दौलत है। मरने के बाद हर आदमी यह तमन्ना करेगा कि कोई अजीज़ो अकारिब यार दोस्त एक दफ़ा सुबहान अल्लाह या सूरे इखलास पढ़कर सवाब पहुँचा दे। आज हम इस दुनिया की ज़िंदगी में सुबहान अल्लाह या सूरे इखलास हज़ारों दफ़ा पढ़ सकते हैं। जो कि करना था किया तुमने न काम, उम्र बातों में करी नाहक तमाम, चिक चिक बक बक में उम्रे अजीज़ तुमने खोई रायंगा ए पुरतमीज़। पर कभी तुमने न जिक्र किया उसका जिसने कि तुमको दिया ज़हनो ज़का, जिक्र में और फ़िक्र में गैरों से अहजान और तन को किया नाहक तबाह। आखिरत के काम से गाफिल न हो, दौलते दुनिया पे तुम मायल न हो, कुछ न अपने रब से तुमने याद की, उम्र अपनी मुफ्त में बर्बाद की। मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का नाम पाक बहुत ही बरकत वाला है और बहुत बड़े बड़े असर रखता है। 14 तपक के फरिश्ते भी उसकी ताशीरें और बरकतें नहीं लिख सकते। बेशुमार लोग इसकी बरकत से अल्लाह ताला के प्यारे और दोस्त हो जाते हैं। यह अजीज़ एक हल्की सी बरकत और ताशीर अल्लाह ताला के नाम पाक की अज़र करता है कि कोई मर्द या औरत नमाज रोज़े का पाबंद होकर हलाल रिज़्क खाकर बावज़ू किबले की तरफ मुँह करके जिस वक्त भी रात या दिन में मौका मिले वक़्त मुकर्रर पर रोज़ाना 5000 मरतबा इसम मुबारक यानी अल्लाह ताला का अल्लाह पढ़ा करेगा तो कुछ अरसे में रोशन ज़मीर और साहिबे कशफ हो जाएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत और इबादत में लज्जत आया करेगी और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक से मुशर्रफ हुआ करेगा और दुनिया में किसी का मोहताज न होगा और अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होगी और ईमान के साथ दुनिया से उठाया जाएगा और अल्लाह के प्यारों में हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर फिरते हैं और तलाश करते हैं अल्लाह ताला की याद करने वालों को। बस जब उन लोगों को पाते हैं जो अल्लाह ताला को याद करते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ देता है कि इधर आओ, और वे फरिश्ते अल्लाह ताला को याद करने वाले को आसमान तक अपने परों के साये में ढक लेते हैं। जब वह जिक्र से फारिग होते हैं तो फरिश्ते आसमान पर चढ़ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वह जानता है कि ए फरिश्तों तुम कहाँ से आए हो। वे कहते हैं कि हम तेरे उन बंदों के पास से आए हैं जो ज़मीन पर हैं। फिर अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वह जानता है कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरा जिक्र सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहते हैं, यानी तेरी पाकी बयान करते हैं, तारीफ़ें और बड़ाई बयान करते हैं और तेरे सिवा किसी की इबादत को काबिल नहीं समझते, तेरी तौहीद बयान करते हैं और तेरी मदद के सिवा किसी काम को अपने इख्तियार में नहीं समझते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देख लिया है। फरिश्ते कहते हैं कि ए रब, हमको तेरी कसम है कि उन्होंने तुझे नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वह मुझे देख ले तो उनका क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं कि अगर वह तुझे देख ले तो तेरी बहुत ज़्यादा इबादत और बड़ाई बयान करें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे वह क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि वह तुझसे जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। फरिश्ते कहते हैं, ए रब तेरी कसम, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वह जन्नत को देख ले तो उनका क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं कि अगर वह
जन्नत को देख ले तो इसके बहुत शौकीन बन जाएं और इसको बहुत मांगे और इसके हासिल करने की बड़ी कोशिश करें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वह बचना किस चीज़ से चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि दोजख से बचना चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि ए रब तेरी कसम उन्होंने दोजख को नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर दोजख को देख लें तो उनका क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं कि अगर वह दोजख को देख ले तो उससे बहुत डरें और दूर भागें। फिर फरिश्ते कहते हैं ए परवरदिगार वह तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ए फरिश्तों गवाह रखो कि हमने उनको माफ़ किया और बख्श दिया। फिर एक फरिश्ता कहता है ए रब उन बंदों में से एक बंदा ऐसा भी आया है कि वह अपने किसी काम को जा रहा था और तेरे जिक्र से गाफिल था, मगर रास्ते में तेरा जिक्र करने वालों के पास बैठ गया था। इसके लिए क्या हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे वह बंदे जो मेरे जिक्र में लगे रहते हैं ऐसे हैं कि उनके पास बैठने वाला भी हमारी रहमत से महरूम नहीं होता। उनकी सोहबत की बरकत से हमने उसको भी बख्श दिया अगरचे वह हमारे जिक्र से गाफिल था। सुबहान अल्लाह। इस हदीस शरीफ से कलमा तमजीद पढ़ने की और जिक्र करने वालों की और उनकी सोहबत में बैठने वालों की खूबियाँ मालूम हुई हैं कि वह अल्लाह के नेक बंदे दिन रात इसकी इबादत और याद में लगे रहते हैं और बहुत खुश नसीब हैं वह बंदे जो जान और माल से अल्लाह वालों की खिदमत करते हैं और अच्छे से अच्छा सवाब पाते हैं। और याद रखो ज़बान से अल्लाह का नाम लेना और उसकी हम्दो सना करना, कुरान मजीद पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना या दिल से अल्लाह पाक का ध्यान रखना और उसकी नाफरमानी से बचना, नमाज पढ़ना वगैरह सब जिक्र में ही दाखिल हैं। और हर वक्त उसको याद रखना तो जड़ है तमाम इबादत की कि अपने मालिक और खालिक की याद किए बगैर इताअत नहीं हो सकती, क्योंकि जिक्र से मोहब्बत होगी फिर इताअत में आसानी हो जाएगी। देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मुझको याद करता है यानी मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस वह अगर मुझे याद करता है अपने दिल में तो मैं भी उसको याद करता हूँ अपने दिल में। खुफिया की फरिश्तों को भी खबर नहीं होती और अगर वह मुझको याद करता है जमात में तो भी उसको याद करता हूँ फरिश्तों की जमात में, मैं जो कि बेहतर है उनसे। और अगर वह मेरे करीब आना चाहता है तो एक बलिश्त तो मैं उसके करीब आना चाहता हूँ एक हाथ, और अगर वह मेरे करीब होने को एक हाथ बढ़ाता है तो मैं दोनों हाथों के फैलावों के बराबर बढ़ता हूँ। और अगर वह मेरी तरफ आता है चल कर तो मैं उसकी तरफ आता हूँ दौड़ कर। यह मिसाल हमको समझाने के लिए है कि बंदा अगर अल्लाह ताला की तरफ आने में भी ज़रा भी ख्याल करता है तो अल्लाह ताला की रहमत और तवज्जो दो चंद सहजंद उस पर बरसती है कि वह रहीम है, करीम है। सिर्फ बंदे की तलब देखना चाहता है और फिर अपने फजलो करम का मेह बरसा देता है। मुसलमान भाइयों अल्लाह की याद में लग जाओ, गफलत को छोड़ दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।